कोई समझ ना आया हो। पेपर 2 रिवाइज कर लेते हैं, चलें फिर क्लियर है तो ठीक है। 106 देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ ने इन्होंने ऑप्शन थोड़े से वो दिए हुए हैं कि 35-year-old male has hypertension for the first time, he has dies autopsy show and ruptured aneurysm, there is an deficiency of media। ठीक है, जबकि एओर्टिक डाइसेक्शन के साथ कौन सा होता है, मीडिया होता है या इंटीमा होता है? इंटीमा है ना। अच्छा, ये ना इन लोगों ने थोड़ा सा ऑप्शन में और जो स्नैरियो है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन आपने बुक को ही फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है। कि इंटीमा एओर्टिक डाइसेक्शन के साथ आएगा और मार्फन के साथ क्या आएगा, मीडिया आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा स्नैरियो चेंज होता है, जैसे रफ़ी के अंदर दिया हुआ है ना। पेपर काइंडली माइक भी टर्न ऑफ कर दें, और पेपर हम SK18 का पेपर कर रहे हैं, पेपर 2 मई वाला। पेपर 1 कल मैंने करवा दिया था, पेपर 2 का आज वाइवा होगा और 3 आज मैं दोबारा करवाऊंगी, ठीक है। तो आपने जो 106 का MCQs है ना, ये आपने रफ़ी से ही फॉलो करना है, जो मार्फन के साथ दिया हुआ है और जो एओटिक के साथ दिया हुआ है, ठीक है। ये MCQs में थोड़ी सी मिस्टेक इन्होंने कहीं ना कहीं की हुई है या कोई चीज़ मिसिंग दी हुई है, ठीक है। ये हम लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था इस MCQs का। चलिए रिवाइज कर लेते हैं इससे पहले। Hyperkalemia leads to which one of the following? Decreased action potential, tachycardia, flaccid paralysis, spasticity. Trigon of urinary bladder derived from which one of the following? Endoderm, mesonephric duct, urogenital sinus, neural crust, cell, neuroectoderm. Mesonephric duct. Low-grade follicular lymphoma translocation is T14 to 18, 19 to 22, 15 to 27, 8 and 21. ठीक है। Niacin deficiency causes which one of the following effect? PNS defect, CNS defect, epithelial defect, limb defect, enzyme defect. Immunoglobulins which crosses the placenta is IgA, G या IgM. Receptors present on fingertips, Pacinian corpuscle, Meissner's crucible, Bruffini. Meissner's. Man has non-lethal MI. What happened to him in a few minutes? Tamponade, arrhythmia, shock, myocarditis, pericarditis. Arrhythmia. Apoptosis is characterized by nucleus fragment, plasma membrane disruption, no host inflammation, adjacent inflammation. Result of positive test came positive and negative came negative. This is related to accuracy, sensitivity, ratio, specificity, true positive. Anterior two-thirds of the general sensation carried by facial nerve, glossopharyngeal nerve, vagus nerve, trigeminal nerve. Trigeminal. Healing of a clean wound sutured by doctor characterized as regeneration, contraction, scar, organization, hypertrophy. Which of the following artery lies behind the sternum? Carotid artery, subclavian artery, internal thoracic artery, intercostal artery. Cyclic AMP messenger systems act through protein chains, receptors, signal clearance enzyme. Receptors. The main action potential of SA node is caused by entry of sodium, entry of chloride, potassium efflux, calcium ions, chloride efflux. इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम आयंस। एक्शन पोटेंशियल जो है ना, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पेसमेकर की जो एक्टिविटी होती है ना वो सोडियम चैनल की वजह से होती है, लेकिन एसए नोड का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो कैल्शियम चैनल की वजह से होता है, ठीक है।
और जो कार्डिक मसल की अगर बात की जाए तो उसका एक्शन पोटेंशियल सोडियम चैनल्स की वजह से है, ठीक है। तो आपने देखना है कि वो पेस मेकर का एक्शन पोटेंशियल होगा तो आपने कैल्शियम चैनल्स को फॉलो करना है। अगर वो कार्डिक मसल के एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं देन आप सोडियम चैनल्स को प्रेफर करेंगे, ठीक है। A granular cerebral cortex is present in auditory area, gustatory area, primary motor area, secondary visual area, somatic sensory area. Primary. Thiazide diuretics act on proximal tubules, early distal tubule, thick ascending limb, collecting duct. ठीक है. A person awake from his sleep and start walking. This is termed as bruxism, somnambulism, narcolepsy, somnolecy. Biostatics deal with presentation of the data, analysis and interpretation of the data entry. Endotoxin is present in periplasmic space, outer cell wall layer, capsule, cytoplasmic space. Which one of the following volume and capacity in the lung after normal tidal volume expiration? Residual volume, functional residual capacity, ठीक है, FRC functional residual capacity, और ये कितनी होती है ऑलमोस्ट, इसकी वैल्यू याद है? सो रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 होता है, लेकिन जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वेरी गुड, वो कितनी होती है 2300 ml. Intestinal motility is affected by gastrin, serotonin, histamine, vasoactive intestinal peptide. VIP. Mechanism of apoptosis in autoimmune disease is molecular mimicry, cross infection with virus, gain of self-tolerance, atrophy. Inversion of foot by which muscle? Peroneus longus, peroneus tertius, tibialis posterior and anterior, gastrocnemius. इन्वर्जन का निमोनिक हमने किया था टिप, ठीक है, टिबियालिस एंटीरियर पोस्टीरियर एंड आई फॉर इन्वर्जन. और ई वर्जन के मसल कौन कौन से होते हैं? ई वर्जन के पेरोनियस लोंगस एंड टर्शियस. हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेपर 3 MCQ नंबर 1. A couple came back from Egypt, developed sore throat, yellow sputum with nausea and abdominal pain and diarrhea. Which drug you will give for the causative agent? तो इसमें डायग्नोसिस क्या बनेगा? ट्रैवलर की हिस्ट्री है, सोर थ्रोट है, येलो स्पूटम है, नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया. डायग्नोसिस क्या बनेगा इसका? अच्छा, इसका डायग्नोसिस बनेगा लीगोनेला, ठीक है, क्योंकि येलो कलर का स्पूटम आ रहा है ना, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन है, ठीक है. तो आपने स्पूटम और सोर थ्रोट और ट्रैवलिंग हिस्ट्री को कंसीडर करते हुए इसका डायग्नोसिस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वाला बनाना है. लीगोनेला का इन्फेक्शन है ये. तो इसमें आप कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? क्लिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है. नेक्स्ट MCQs में आपने भी इसका डायग्नोसिस बताएं क्या है. एन ओल्ड मैन केम फ्रॉम थाईलैंड हैविंग सीवियर रेस्टलेस, हैविंग स्क्रोटल पेन, डिस्चार्ज और स्वेलिंग. देयर हैज़ हिस्ट्री ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटीज़. तो सेक्शुअल एक्टिविटीज़ की हिस्ट्री है, तो अब उसमें कौन सी इन्फेक्शन है? ठीक है, जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन, गनोरिया या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तो इससे आप ट्रीट कैसे देंगे? सिप्रो देंगे 500 mg पर ओरल और 1 अजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम OD में देंगे. When botulinum atoxin is used for and orofacial dysdiakinesia, what is the mechanism? botulinum कैसे एक्ट करता है? एसिटाइलकोलिन के रिलीज को डिक्रीज कर देता है प्री साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे. लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इज फंक्शनली किसके साथ रिलेटेड होते हैं? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के साथ. डिप्लीशन ऑफ सीरोटोनिन एंड नोर एड्रीनालिन क्या कॉज करते हैं? इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ द रैम स्लीप, ठीक है. और रैम स्लीप के ड्यूरेशन को कम कौन करता है? कौन से फैक्टर्स हैं जो रैम स्लीप को डिक्रीज कर देते हैं? बेंजोडाइजेपिन एंड अल्कोहल, ठीक है, दोनों. द पैथोजेनेसिस बिहाइंड हेयर डाइट फॉर्म मोल क्या होता है? ये एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है. ए पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सम टाइप ऑफ कैंसर, हेमिकोलेक्टमी डन, हैविंग डूक्स टाइप B स्टेज, यू विल फॉलो अप द केस विद द हेल्प ऑफ. अब आप क्या करवाएंगे? CEA वाला मार्कर करवा लेंगे. कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए करवाते हैं ना, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन. नेक्स्ट MCQ उसका आपने करेक्ट आंसर बताना है. ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप A
ए ब्लड ग्रुप है, अब उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? ए एंटीग्लोबिन ऑन एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, अल्फा ऑप्शन, ठीक है। ए है तो उसके ऊपर ए एंटीग्लोबिन होगी, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप है तो उसके ऊपर बी एंटीग्लोबिन होगी। Patient has lipoma on the posterior aspect of sternocleidomastoid 5 cm relation to sternoclavicular joint with structure ligated leading to profuse bleeding second part of subclavian artery. ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कौन सी जीन होती है? बरका 1 एंड 2। नेक्स्ट MCQ से कि एमनियोसेंटेसिस कितने वीक पे नहीं कर सकते? 10 वीक से पहले नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल कितने? ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा है। प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटिव ट्यूब्यूल पे एब्जॉर्प्शन कितनी होती है? 67% होती है ऑलमोस्ट। ड्यूरिंग द थोरेसिक सर्जरी आपने एक प्रोसीजर किया है, इलाइगेट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को किया, उसके साथ कौन सी नर्व पास करती है? IPP, इप्सिलैटरल फ्रेनिक नर्व। A neonate is brought by his mother with a complaint of cessation of breath on and off and blue discoloration of the skin. On examination, decreased chest movement on the left side. Auscultation पे आपको पता चला कि ब्रेथ साउंड नहीं है ऑन द लेफ्ट साइड। ऑन एक्सरे बाउल लूप आर सीन, तो उसमें बेसिकली क्या है? कॉन्जेनिटल डायफ्रैगमेटिक हर्निया है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs भी सेम है कि एक्सरे के अंदर लूप आ रही है तो पेटेंट प्लूरोपेरिकार्डियल पेरिटोनियल केनाल है, ठीक है। 17 कहते हैं कि लेडी है, डिफिकल्ट लेबर है। अच्छा बताएं कि DIC के अंदर आपको क्या नजर आते हैं? बर्ड सेल, ठीक है। अब उसे सारी फाइंडिंग दे दी है, सेकंड लास्ट लाइन पे उसे लिखा हुआ है कि बर्ड सेल, जब भी बर्ड सेल आएंगे और सारी चीज़ें रेज्ड होंगी तो DIC होगा। नेक्स्ट MCQs भी सेम है। Which one of the following interleukin will cause increase of the red blood cell? आपने 3 से याद रखना है, रेड ब्लड सेल के 3 लेटर्स है ना, तो इसके साथ कौन सा इंटरल्यूकिन अटैच होता है? इंटरल्यूकिन 3। After vagal stimulation of heart rate slow down, permeability of SA node increased for potassium. After vagal stimulation of heart rate slow down due to permeability of SA node। अब SA node के अंदर नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कैसे आएगा? जब पैरासिम्पैथेटिक होगा तो सोडियम इनफ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, पोटाशियम इनफ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, तो सोडियम एंड पोटाशियम दोनों का इफेक्ट आएगा। टॉन्सिलेक्टमी आपने अगर करनी है तो कौन सा टेस्ट करवाते हैं? PP एंड APTT। A young boy hit by a ball on temporal region, swelling at the temporal region occurs. Linear fracture of a parietal bone is seen. What is the cause of swelling? क्या होगा? Rupture of middle meningeal artery. मैक्सिमम एओटिक प्रेशर इन विच फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल कौन सा होता है? रैपिड इजेक्शन फेज। रिड्यूस इजेक्शन फेज इज ग्रेटर देन रैपिड इजेक्शन फेज। अराउंड 60% वेंट्रिकल फिलिंग कहाँ होती है? रैपिड एओट फिलिंग फेज के अंदर होती है। नेजल बॉयल्स की कौन सा इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म कॉज करवाते हैं? स्टेफ ओरियस। ए पर्सन इज अनएबल टू लोअर हिज आई, तो लीजन किसके अंदर आ जाता है? 3 एंड 4th नर्व कहाँ से पास करती हैं? आइस वाली मिड ब्रेन से, ठीक है, मिड ब्रेन से पास करेंगे ना, ट्रोक्लियर एंड ओक्यूलोमोटर। आइज ऑफ ए पर्सन कांट बी रोटेटेड फ्रॉम द एडक्टेड पोजीशन, विच मसल इज डैमेज। अगर एबडक्शन लॉस हो गई है तो वो कौन सा है? लैटरल रेक्टस। ए लेडी सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट अंडरगो टोटल मैस्टेक्टमी डेवलप एडिमा ऑफ द राइट लिम्ब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रीजन ऑफ दिस एडिमा? लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। ए यंग बॉय विद प्रोटीन यूरिया ऑफ 3.5 ग्राम एंड होल बॉडी स्वेलिंग, कोज ऑफ एडिमा क्या होगा? हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। ओल्ड एज मैन विद जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा, कॉज क्या होगा? हाइपोप्रोटीनीमिया। ए पेशेंट प्रेजेंट विद मैसिव थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो साइट ऑफ ओरिजिन क्या होगा? पोप्लिटियल वेन्स। नेक्स्ट MCQs में उन्होंने डेस्मोप्लेजिया की डेफिनेशन आपने एज इट इज याद रखनी है। ये नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। एबनॉर्मल A/A रेशियो कितनी होनी चाहिए? 0.75। एंटीबॉडीज मास्ट सेल IgA, व्हाट परसेंटेज ऑफ IgA कितनी बनाते हैं? 70%। ड्रग यूज फॉर मोशन सिकनेस में हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोमेथाजीन। और मॉर्निंग सिकनेस में क्या यूज़ करते हैं? प्यारिडॉक्सिन, ठीक है। और माउंटेन सिकनेस के लिए एसिटाजोलामाइड, एयर सिकनेस के लिए मिकोलाजिन। A student came with a pale nasal mucosa, nasal congestion, sneezing. He is having these symptoms since 3 months. On examination, inflamed edematous nasal mucosa seen. Which among them will be effective now? अब आप क्या उसे देंगे? स्टीरॉइड्स देंगे। स्टीरॉइड्स का स्प्रे होता है ना, तो इंट्रानेसल कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स दे देंगे उसे। ए सेक्सुअली एक्टिव फीमेल केम विद डिस्यूरिया, यूरिन डिप्स्टिक एंड कल्चर शो इंक्रीज ल्यूकोसाइड पॉजिटिव, नाइट्रेट्स एंड ग्राम पॉजिटिव। ये कौन सा होता है? सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स के अंदर स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस होता है।
A patient present with Crohn disease. For her treatment of remission, corticosteroids are given. What is the best maintenance of the maintenance में आप क्या देंगे? azathioprine. सोल्जर हाई आल्टीट्यूड के अंदर कोल्ड वेदर के अंदर कौन सा एक्टिवेट हो जाता है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एंड वाइस वर्सा. क्रोनिक कफ है, फीवर है, रेटिकुलोनोडुलर ओपेसिटी है, एपिथेलियोइड सेल क्या बताते हैं? ये टीबी का इन्फेक्शन है. टीबी में कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है? टाइप 4. पैथोजेनेसिस ऑफ HIV एड्स किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं? डिक्रीज CD4 प्लस हेल्पर टी सेल्स. इन HIV मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन कौन सा होता है? कैंडिडा होता है. नेक्स्ट MCQ से आपने लास्ट 3 लाइन्स के ऊपर आना है कि एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है, उसका नाम है वॉन जर्की डिजीज़, डायग्नोज है. विच एंजाइम इज डेफिशिएंट इन दिस पेशेंट? तो कौन सा एंजाइम इस पर डेफिशिएंट होगा? G6P. 85-85-year-old patient present to the clinic, fever and neck stiffness. He had done splenectomy 20 years back. The causative agent of this causative agent उसका क्या होगा? स्टेप निमोनी होगा. शिन वाला निमोनी का आपने याद रखना है. पोस्ट स्प्लीनेक्टमी भी रिपीटेड है. IgE के रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ब्लड सेल के ऊपर, मास्ट सेल पे. व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोबैक्टीरियल लेप्री? ठीक है, ये क्या करते हैं? एसिड फास्ट होते हैं ना. एसिड फास्ट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होते हैं. और जो लेप्री वाला होता है ये क्या करता है? नेजल ब्रिज को डिप्रेस करवा देता है. 49 एंड एजिड मैन नोन केस ऑफ हाइपरटेंसिव वाज ऑन क्लोनिडीन, रन शॉर्ट ऑफ इट नाउ प्रेजेंट. उसका बीपी अब दोबारा रेज्ड होके 190 पे चला गया. तो आप क्या करेंगे? रिस्टार्ट करेंगे क्लोनिडीन को और नेक्स्ट 24 आवर्स में पेशेंट को मॉनिटर करेंगे. ए लेडी प्रेजेंट आफ्टर ट्रॉमा इन ए लिफ्ट ऑन एग्जामिनेशन. नहीं, 48 का. ये दोनों जो होते हैं ना, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस और जो लेप्री, ये दोनों ना एसिड फास्ट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होते हैं. तो इसका आंसर सी ही बनता है आई गेस. इराटा के अंदर इसका आंसर बीटा दिया हुआ है. नहीं, सी में इंट्रासेलुलर दिया हुआ है. एसिड फास्ट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होते हैं ना ये दोनों. ठीक है, ये वाला भी और टीबी वाला भी, इनकी एक ही क्लास है ना. ए लेडी प्रेजेंट आफ्टर ट्रॉमा इन ए लिफ्ट ऑन एग्जामिनेशन, लॉस ऑफ डोर्सल सेंसेशन ऑफ द लेफ्ट फुट विद लॉस ऑफ डोर्सी, मतलब डोर्सिफ्लेक्शन ई वर्जन लॉस हो जाए तो कौन सी नर्व सप्लाई करी होती है? कॉमन पेरोनियल नर्व. हाइपरकैल्सीमिया अब क्या इंक्रीज क्या होगी? 24-25 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरोल. और डिक्रीज क्या होगा? 125. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी इज यूज्ड फॉर लेबोरेटरी असेसमेंट के लिए अब आपने क्या करना है? 25 एंजाइम देखते हैं. 25 हाइड्रोक्सीलेज. आर्टरी विच सप्लाई द inferior thyroid gland is branch of thyrocervical trunk. Husband and wife came to you regarding their concern and they both are thalassaemic carriers and they are worried about their baby. प्रीनेटल मॉनिटरिंग आपने उन्हें पहले ही बता देना है कि उनका बच्चा थैलेसीमिक ही पैदा होगा. ठीक है. 55 कहते हैं कि मैन प्रेजेंट विद पेराइटल लोब की एट्रोफी हो गई है. व्हाट विल बी सीन? अब क्या हो जाएगा? राइट एंड लेफ्ट साइड की डिसओरिएंटेशन हो जाएगी. EEG के अंदर रिलैक्स माइंड या क्लोज आई के साथ रेस्ट के ऊपर कौन से होंगे? अल्फा रिदम्स और बीटा रिदम्स कब होंगे? जब वो बिजी होगा. ए पर्सन इन ए मैराथन रेस, एट द एंड ऑफ द रेस ही ड्रिंक्स वाटर टू कंपनसेट फ्लूइड लॉस ड्यू टू स्वेटिंग. व्हाट विल बी सीन इन हिम एट द एंड ऑफ मैराथन? क्या होगा? डिक्रीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड का पहले वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना. ठीक है, अभी उसने पानी, ही ड्रिंक्स वाटर टू कंपनसेट फ्लूइड लॉस. व्हाट विल बी सीन इन एट द एंड ऑफ. अच्छा, अब लेकिन उसने अभी वाटर ड्रिंकिंग की बात उसने बताई हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी उसने पानी पीने से अगर पहले जब मैराथन उसने एंड किया था तब क्या होगा? इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा. ठीक है, तो अभी वो ये नहीं बात करा कि वाटर ड्रिंक के बाद की क्या सीक्वेंस आ रही है. ठीक है, उसने पहले की बात की है. नेक्स्ट MCQs में जब भी स्टोनी है हार्ड मैस आपको पाल्पेट होगा तो वो कौन सा होगा? इंटरनल लाइनिक एंड सैक्रल होगा. मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन मैन वर्ल्ड वाइड कौन सा होता है? प्रोस्टेट कार्सिनोमा होता है. पेशेंट ऑफ फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा, इट विल मेनली मेटास्टाइज कहाँ चला जाता है? लंग्स के अंदर. ए स्टैब वुंड इंजरी ऑन द राइट साइड लेटरल टू स्टर्नम एट 6th इंटरकोस्टल कार्टिलेज. व्हाट स्ट्रक्चर विल बी डैमेज? तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा? राइट का साइड का एट्रियम. ठीक है. 62 a 25-year-old male with swelling at left inguinal region with positive cuff impulse. It move when ipsilateral testis is retracted downward. तो ये कौन सा है? inguinal hernia. A piano player present with right और left hemisphere का lesion है.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रॉब्लमेटिक इन हिम। तो प्रॉब्लमेटिक इन हिम कौन सा होता है? फाइन मूवमेंट्स ऑफ द हैंड, क्योंकि वो पियानो है ना, पियानो प्लेयर की बहुत फाइन मूवमेंट्स होती हैं हाथों की। सिमेटोडिन इज गिवन प्री ऑपरेटिवली, क्योंकि वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या करता है? गैस्ट्रिक एसिड के वॉल्यूम को डिक्रीज करवा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग कॉज हेलुसिनेशन एंड लेट मानिया? कौन करवाता है? ओलेंजापिन। इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है ना, पेशेंट आपके पास नेक्स्ट टाइम आएगा उसके साइड इफेक्ट्स के साथ, और वो बहुत सवेयर होते हैं। ठीक है। इफ़ पाइलोरिक स्फिंक्टर इज कट व्हाट विल हैपन? तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ठीक है। डिनर्वेशन ऑफ द किडनी विल कॉज क्या हो जाएगा? इंक्रीज यूरिन फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमने किया हुआ है कि पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन के ऊपर जो पेन है वो कहाँ से राइज हो रही है? T2 एंड L2 से। पेशेंट प्रेजेंट विद RH पेन, डर्माटोम फॉर कोलिसिस्टाइटिस कौन सा है? T7 to T9। aldosterone act on which part of the kidney? cortical collecting tubule CCT। नेक्स्ट हमने किया हुआ है कि जब भी रीनल बायोप्सी के अंदर कोर्टिकल नेक्रोसिस आएगी, क्रेटिन रेज्ड होगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगी, व्हाट इज द कॉज? इन दिस पेशेंट में क्या होगा? इरिवर्सिबल इंजरी होगी। ए फीमेल विद शॉर्ट स्टूचर और नेक, ये कौन सा है हमारे पास? स्टर्नर में होता है 47XO। ऑक्सीजन सेचुरेशन एट सी लेवल इन ए यंग एडल्ट कितनी होती है? 97% होती है। इन ए पेशेंट विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी? तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि जो लीवर है वह अनएबल टू सिंथेसाइज प्रोथ्रोम्बिन। इसमें जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मसला आ रहा होता है ना, हमने कल भी एक MCQ किया था, एग्जाम में भी आता है, जब भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT के अंदर इशू आ रहा होगा तो कोई लीवर के अंदर इशू आ रहा होगा, आपने ऑप्शन चूज करना है लीवर डिजीज वाले। साइटोप्लाज्मिक एंटी यानी कि अनका बॉडीज किसके अंदर पॉजिटिव आती हैं? वस्कुलाइटिस के अंदर। ए फीमेल विद ड्राई आइज, सब कुछ ड्राई है। डिस्फेजिया है, सॉरी बायलैटरल पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है। एक्सरे के अंदर निमोनाइटिस है। तो ड्राई आइज ड्राई माउथ के साथ डिस्फेजिया आ रहा है, तो प्राइमरी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, मतलब ये सिस्टेमिक सारे सिम्टम्स आएंगे इसमें। Raynaud phenomena, dyspnea in large spleen है। creatinine and urea was raised, ANA positive है, HB10 है, WBCs and platelet normal, what is the diagnosis? क्या होगी? progressive systemic sclerosis। which one of the following vitamin is given along with isoniazid? के साथ हम कौन सा देते हैं? B6 देंगे। which anti-TB drug dose is adjusted when GFR is below? जब GFR 30 से कम होता है ना, तो आप रिफेम्पिसिन को डोज को एडजस्ट करके टाइट्रेटेड करके आपने देनी होती है। ठीक है, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक भी हो सकती हैं। अच्छा, अगर आपको इसमें सीक्वेंस इसका पता है कि नेफ्रोटॉक्सिक कौन कौन सी होती हैं? जेंटामाइसिन, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स में से जेंटामाइसिन भी नेफ्रोटॉक्सिक होती है। अभी जो सारे इसमें ऑप्शन दिए हुए ना एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग। अच्छा, अगर इसमें फर्स्ट ऑप्शन में ना आपने पायराजिनामाइड चूज़ करना है, देन रिफेम्पिसिन, देन आइसोनियाजिड, लेकिन अब उसकी GFR बहुत ज़्यादा कम आ रही है। ठीक है, तो अब डोज एडजस्टमेंट के साथ हम दे सकते हैं। कौन सी दे सकते हैं? रिफेम्पिसिन ऐसी है, अगर आप उसकी थोड़ी सी डोज एडजस्ट कर दें तो तब भी आप, अगर GFR डिक्रीज है यानी कि CKD का पेशेंट है, तो तब भी आप उसे डोज एडजस्टमेंट के साथ दे सकते हैं। ठीक है। ए पेशेंट विद लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर लाउड S1 मिड डायस्टोलिक मर्मर, तो डायग्नोसिस क्या होगा? माइट्रल स्टेनोसिस। Congenital erythropoietic porphyria which enzyme will be deficient? इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा? यूरोपोरफायरिन 3। सिकल सेल एनीमिया के अंदर HP अगर डिक्रीज आ जाती है तो इसका मतलब है हिमोलिटिक क्राइसिस स्टार्ट हो गए हैं। आफ्टर RT अगर GFR डिक्रीज होती है एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, इसका मतलब है आर्टीरियल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया है। द बेस्ट वे टू एस्टिमेट द GFR इज बाय क्रेटिनिन इज ग्रेटर, इनुलिन इज ग्रेटर देन क्रेटिनिन। ठीक है, अगर ऑप्शन में इनोलिन होता तो बेस्ट वे जो है ना वो आपका इनोलिन होता है। ठीक है, और क्लिनिकली आप मेजर करने के लिए क्रेटिनिन यूज़ करते हैं। पेशेंट ऑन केस ऑफ हेपेटाइटिस B वायरस हैविंग सिरोसिस हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म कौन सी होती है? रेनिन उसका इंक्रीज हो जाएगा। लेमिला फॉर्मिंग ब्लड एयर ब्लड बैरियर कौन बनाता है? टाइप 1 निमोसाइट्स। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा मिडल लोब अगर आपने रिमूव करनी है उसमें कौन कौन से सेगमेंट होते हैं? मीडियल एंड लैटरल। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी अराइज कहाँ से अराइज करती है? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सर्जरी आप
टेम्परेचर मेजर करने के लिए प्रोब कहाँ रखते हैं, इसोफेगस के अंदर रखते हैं। 90 ए नर्व इज कट डिस्टल टू द हेड ऑफ रेडियस बोन रिजल्ट इन लॉस ऑफ एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन को कौन सप्लाई करी थी, नर्व, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। रैम स्लिप को इनिशिएट कौन करवाता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम स्लिप इज बेंजोडाइज़ेपिन, उसका इंटरवल डिक्रीज कर देती हैं। लंग root cut median to branching of primary bronchus. How can you identify the site of root and right and left bronchus? Position of pulmonary veins. शॉर्टेस्ट कौन सी होती है, पी फल्सीपेरम होती है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, प्लाज्मोडियम मलेरिया की लॉन्गेस्ट फेज होती है। कैप्सूल ऑफ बीटा एंथ्रैक्स स्टेन विथ माफियन स्टेन, ठीक है। नॉन प्रोडक्टिव कफ है, नॉन स्मोकर है, तो ये कौन सा कार्सिनोमा है, रेडोन एक्सपोजर की वजह से। ए पेशेंट प्रेजेंट विद हाइड्रोसेफलस विद डायलेटेड वेंट्रिकल्स और CSF ब्लॉकेज है। ब्लड CSF बैरियर कौन बनाता है, एंडोथीलियम। जी फैब प्रोटीन किसके अंदर पॉजिटिव आती है, एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर। सार्कोमा क्या होता है, बेसिकली ये एक सारे इसमें ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें वस्कुलैरिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। साइटोकेराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट किसका है, आइडेंटिफाई करते हैं हम इसमें मेलिग्नेंसिस को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूप्लेजिया कंफर्म टू बी ए कार्सिनोमा। एन ओबीस पेशेंट वियर ए टाइट कॉलर, अगर आप पहनते हैं और आप फेंट हो जाते हैं, इससे क्या होता है, टाइट कॉलर से वीनस कंप्लायंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आफ्टर ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस पेशेंट नहीं, सबक्लेवियन जो स्टील सिंड्रोम है ना, उसके अंदर वर्टेब्रल आर्टरी आ रही होती है, ठीक है। इसमें वो वाला नहीं है, सबक्लेवियन के अंदर वर्टेब्रल आर्टरी की कंप्रेशन आ रही होती है। ये तो उन्होंने बात की हुई है। एन ओबीस पेशेंट वियर्स अ टाइट कॉलर शर्ट फील टाइटनेस इन कॉलर, कॉलर की बात की जा रही है, ठीक है। फेंट वेन एवर ही टर्न हिज हेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। टाइट कॉलर, जब आप प्रेशर, टाइट कॉलर से क्या होगा, वैसे भी अगर आप दोनों एक ही टाइम पे अगर आप कैरोटिड साइनस के ऊपर अपना प्रेशर इंक्रीज करेंगे ना, तो पेशेंट फेंट नहीं हो जाता, आपने वैसे भी देखा होगा, पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब भी कैरोटिड साइनस के ऊपर आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा, टाइट कॉलर ने जब प्रेशर अप्लाई किया, तो उसने क्या किया, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कर दिया। एक तो पेशेंट फेंट हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा, हाइपोटेंशन में चला जाएगा, वेजोडाइलेशन में चला जाएगा और सिंकनोप, यानी कि वो फेंट हो जाएगा। तो इन रिटर्न ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, उसकी वीनस कंप्लायंस को इंक्रीज कर रही हैं। जो वेजोडाइलेशन होगी उसकी वीनस कंप्लायंस को इंक्रीज करवा देगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि बीपी जब भी उसका कम है, ब्लड लॉस है, बीपी डिक्रीज है 85/60, अब क्या चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे मीन आर्टीरियल प्रेशर कैलकुलेट किया, वो 60 से अबव है, अगर 60 से बिलो होता तो हम CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स को प्रेफर करते। पेशेंट फिंगर कट, डॉक्टर टोल्ड हिम नॉट टू बी वरीड एट ऑल, ही विल बी फाइन ड्यू टू रीजनरेशन, कौन करवाते हैं, स्ट्रेटम बेज़ेल। इन एक्यूट रिस्पॉन्स ऑफ न्यूरोजेनिक ट्रोमा व्हाट विल, क्या चीज़ रिलीज होती है, कोर्टिसोल। ए बॉय ऑन बाईसाइकिल हैड एन एक्सीडेंट एंड प्रेजेंटेड विद अनएबल टू वॉइड सिंस 2 days, इट इज़ ड्यू टू इंजरी ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है। जब भी अनएबल टू वॉइड यानी कि उसे यूरिनेशन में मसला आ रहा है, देन डैमेज कहाँ पे है, यूरिथ्रा के अंदर डैमेज आ रहा है, ठीक है। एक बच्चा है वो फास्ट फूड खाता है, उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फॉलिक एसिड की। A patient with has anemia and hypersegmented neutrophils are present on peripheral blood examination. What is the cause, क्या होगी, folic acid deficiency anemia हो जाएगा। अगर B12 होता तो आप उसको भी चूज कर सकते थे। हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस के अंदर किस प्रोटीन का डिफेक्ट आता है, स्पेक्ट्रिन का। ड्यूरिंग फेरेंजियल फेज ऑफ स्वेलिंग कौन, क्या चीज ट्रू आती है, लेरेंक्स जो है वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। एक ग्रुप ऑफ डिजीज पर्सन इज कंपेयर्ड विद ए ग्रुप ऑफ नॉन डिजीज, तो हम कौन सी होती है, केस कंट्रोल में क्या होती है, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज। और एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड, ये कौन सी स्टडी होती है, एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड कोहॉर्ट, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग secretion are hypotonic having more bicarb and decrease after vagotomy, के बाद पेंक्रियाटिक secretion decrease हो जाती है। इंसुलिन को ग्लूकोज के अपटेक के लिए कौन सा चैनल होता है, GLUT4। A neutropenic hypotensive patient admitted in oncology ward with history of dysuria and high grade fever, his blood culture yielded growth of Plasmodium p aeruginosa. These findings Pseudomonas aeruginosa, ठीक है। These findings suggest the disease is a result of excessive release of, तो जो Pseudomonas aeruginosa होता है उसमें क्या चीज़ रिलीज होती है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 1।
फंक्शन ऑफ C3 एंड C5A क्या करवाते हैं? वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करवाते हैं एंड एनाफाइला को टॉक्सिन करवाते हैं। फार्मर प्रेजेंट विद माइग्रेटिंग लीनियर लीजन ऑन द फूड। जब भी लीनियर टाइप ऑफ लीजन होती है ना, वो कौन सी होती है? क्यूटेनिया लार्वा माइग्रेंस। A weightlifter was lifting weight in a competition. Suddenly, his arm gave up and he dropped to weight. The weight. What is the responsible for that? तो उसके लिए क्या चीज़ responsible है? Golgi tendon organ. A patient in a shock. हाँ जी, Golgi tendon. A patient in a shock become pulseless. Surgeon palpate between infrared and trachea. कौन सा होता है? Common carotid. In case of healing and repair, ATP regeneration and creatine kinase synthesis occur किस phase में होती है? Active phase में. Which one of the following tumor has gene amplification? कौन सी होती है? NMYC न्यूरोब्लास्टोमा में। CML के अंदर ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है? N922। A person running in a marathon race, blood flow to the non-exercising muscle कौन सप्लाई कर रहा होता है? Post ganglionic sympathetic cholinergic. Low dose epinephrine causes vasodilation by acting on beta 2 receptors. An aged man present with increased heart rate, increased cardiac output, decreased peripheral vascular resistance. Which one of the following precursor he is taking? तो कौन सा ले रहा है वो? norepinephrine. Stab wound in upper arm and floor of axilla. Which nerve is damaged? अब कौन सी डैमेज हो जाएगी? intercostobrachial nerve. Excess iodine is removed from the body. कौन सी चीज़ रिमूव कर देती है उससे? यूरिन. Creditic feature of acid fast microbacterium tuberculosis bacteria कौन सा होता है? thick wall mycolic acid. Autoregulation of GFR is done by tuberoglomerular feedback mechanism. By considering the location of pituitary gland, which nerve will be compressed by the tumor of anterior pituitary? Anteriorly किसको compress करती है? Optic nerve को. Laterally किसको compress करती है? cavernous sinus को. Inferiorly sphenoid ear sinus को. Superiorly optic chiasma को. जब भी जर्मन मीजल्स की बात आए तो 5 वीक्स के ऊपर वो क्या कॉज करवाती है? कैटरैक्ट कॉज करवाती है। और 7 वीक से अबव डेफनेस कॉज करवा देगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एंटीडोट ऑफ ड्रग ओवरडोज क्या होती है? आईवी होती है। ग्रास्प रिफ्लेक्स इन बेबी इज प्रेजेंट अप टू बाय द एंड ऑफ 6 पोस्टनेटल मंथ। कोलेंजियोकार्सिनोमा कॉज्ड बाय कोलोनरी साइनेसिस। एडीएच शॉर्ट टर्म का एक्शन क्या होता है? आर्टेरियोलर की वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाती है। ए पेशेंट हैज इन्फार्क्ट ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सप्लाई करता है? अब वो इन्फार्क्ट हो गया, इसका मतलब है कोई थ्रोम्बोटिक लीजन आ गया, उसमें थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन ऑफ LCX, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। ए पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज, अल्सर गेट रप्चर ऑन सुपीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ड्यूडिनम। कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। बॉक्सर हिट ऑन द फेस, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट डैमेज, नाउ माउथ रिमेन ओपन। अब माउथ ओपन ही है उसका, तो कौन सा मसल है जो माउथ को ओपन रख रहा है? लैटरल टेरिग्वाइड। Which one of the following is the most potent antioxidant? कौन सा होता है? ग्लूटाथायोन। एस्पिरिन या क्लोरोसिस किसको इनहिबिट करती है? थ्रोम्पोएक्सिन A2 को। हेपरिन का मैकेनिज्म क्या होता है? एक्टिवेट करती है एंटीथ्रोमिन 3 को और इनहिबिट करती है फैक्टर 10A को। लीजन ऑफ द बेसल गैंग्लिया विल रिजल्ट इन व्हाट मस्कुलर रिस्पॉन्स? क्या करवाएगी? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ग्लाइकोलिटिक एंजाइम रेड ब्लड सेल्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। जी प्रोटीन फॉस्फोलिपिड। सी इंक्रीजेज द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। इंक्रीज कैल्शियम इन एक्स्ट्रासेलुलर हाइपरकैल्सीमिया क्या करवाएगा? सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट करवाएगा। और हाइपरकैलीमिया क्या करवाएगा? डायस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट करवाएगा। ECG of a patient show progressive prolongation of PR interval in successive beat followed by a drop beat जब भी आ रही हो तो मोबिट्स टाइप 1 AV ब्लॉक होता है। ए पेशेंट विद pH डिक्रीज है, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का स्नैरियो है। ए फीमेल प्रेजेंटेड विद वीकनेस ऑन द राइट साइड, CT स्कैन शो पोस्टीरियर फ्रंटल पैराइटल एंड मीडियल, तीनों आ रही हैं तो MCA। एक्सरसाइज कॉज हाइपरवेंटिलेशन, व्हाट इंक्रीजेज द रेस्पिरेटरी ड्राइव ड्यूरिंग द एक्सरसाइज? तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। थर्ड वीक के अंदर गैस्ट्रेशन के अंदर क्या चीज़ बन जाती है? टर्शरी बिलस। नेक्स्ट में जो है ना, लंग इज डिस्टेंडेड ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? आपने इसमें याद रखना है TIP निमोनिया टिप। सबसे पहले आपने चूज करना है ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, देन इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ठीक है, और देन इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा, इसका करेक्ट ऑप्शन है,
ठीक है, ये इराटा के अंदर भी डॉक्टर हमजा ने इसका बीटा ही करवाया था कि इसका करेक्ट आंसर आप पहले ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर को प्रेफर करेंगे, देन इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ये वाला क्लियर है ना? MCQs 149। चले, ए मैन ड्यूरिंग ए रोड साइड एक्सीडेंट सफर इंजरी ऑन सर्वाइकल सिंपैथेटिक, पहले वो पीपल की माइड्रेसिस करवा रही थी ना, अब हॉर्नर सिंड्रोम डेवलप हो गया तो इप्सिलैटरल प्यूपल की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। लिगामेंट पियर्स एट लास्ट, सबसे एंड में कौन सा होता है? लिगामेंटम फ्लेवम। पर्सन प्रेजेंट विद सेंट्रल चेस्ट पेन फॉर 3 आवर्स विच कार्डिक एंजाइम रेस्ड, कौन सा होगा? CKMP। पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम विद स्ट्रक्चर इन GBM प्ले मेजर रोल इन permeability selectivity for the protein laminaria externa. There is no edema due to increased aldosterone क्योंकि escape mechanism की वजह से। L-DOPA is given for Parkinson disease which one of the following decrease from the anterior pituitary से क्या रिलीज होता है? प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। सेकेंड पोलर बॉडी कौन बनाता है? मियोसिस 2 में बनती है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज सीन, उसमें क्या होता है? सेल हैज प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, transmigration of inflammatory cells by the help of PCAM1. A man has different blisters on his skin. On microscopy, epidermis and dermis is separated by thin fluid. Which one of the following type of fluid is present in these? तो वो सीरस फ्लूइड होता है ना, ब्लिस्टर है ना, छाले हैं, छाले के अंदर किस तरह का फ्लूइड होता है? सीरस पानी की तरह का होता है। Sterilization is done by which kill all except pores. Which one of the following organism can still produce infection? अब कौन करवाएगा? जिसके स्पोर्स जो हैं वो रेजिस्टेंट है स्टीरिलाइजेशन से भी, तो वो क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई होता है। A scientist is studying different cellular changes. He observed decreased cellular regeneration and DNA damage in a case of which one of the following cause क्या होगी? Cellular aging. A man got fracture of a bone in on an RTA. प्लास्टर इज डन, मतलब प्लास्टर के बाद क्या होगा? एट्रोफी हो जाएगी ना, डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी। इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन एंड डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। एफरेंट फाइबर ऑफ सिलरी गैंग्लियन कहाँ से आते हैं? ओक्यूलोमोटर नर्व से। 14 कीटोस्टेरॉइड क्या चीज़ इंक्रीज कर देता है? एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम के अंदर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज पोटाशियम हाइपरकैलेमिया क्या करवाता है? फ्लैसिडिटी करवा देता है। A boy came with complaint of multiple bruises and ecchymosis on the skin and recurrent epistaxis. His BT and CT is normal. Which other thing you would like to check? First of all, हम क्या चेक करेंगे? प्लेटलेट काउंट को चेक करेंगे। A patient has severe problem in breathing at room temperature. 100% oxygen is given, after which mixed arterial pressure goes to 670 mmHg2. पार्शियल प्रेशर अब उसका 100 से डिक्रीज हो गया, 70 पे आ गया, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो गया है। A boy working in cotton mill industry prone to byssinosis. मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर डिलेड वुंड हीलिंग कौन सा होता है? लोकल में इन्फेक्शन आ जाएगा और सिस्टेमिक में, सिस्टेमिक कौन सा होता है? डायबिटीज आ जाएंगे ना सिस्टेमिक में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, वो ये MCQs एग्जाम में भी आया हुआ है। स्लो स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन वेव वाया कैल्शियम इनफ्लक्स। A patient got injury after which he lost sensation of thumb, index and middle finger with no loss of thenar or palmar sensation and loss of pincer grasp between thumb and index finger. Which one of the following muscle is paralyzed? कौन सा मसल पैरालाइज्ड हो गया? मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की निमोनिक बताएं कौन कौन से किए हुए हमने? लॉफ निमोनिक, उसमें आ जाएगा ओपोनेंस पॉलिसिस्ट। डाइसाइक्लोमिन एक्ट वाया M3 रिसेप्टर्स, जब भी मेनिंजाइटिस होगा नेक्स्ट MCQs में तो वो किसके थ्रू स्प्रेड करता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के थ्रू। नेक्स्ट MCQs में pH ड्रॉप होके 40 पे आ गई है, HB15 है, यानी कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सी है। एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है? सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और पल्मोनरी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी लिमिट में रह के कॉम्पिटेंस जितनी, मतलब जो काम आपको आता है बस आपने उतना ही करना होता है, आपने उससे ज़्यादा नहीं करना जो आपको नहीं आता। Which part of intestine thick loop with less mesentery fat and long vasa recta with her arcade surgeon asked by uplifting of gut during surgery? तो वो कौन से होते हैं? जेजुनम के ऊपर होते हैं, लेस mesentery fat और vasa recta. Which liver involved in esophageal varices submucosa? Which one of the following is causative agent for carcinoma of the cervix? Human papilloma virus 16 and 18. फोर्सफुल इंस्पायरेशन में सारे आ जाएंगे ना, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड, सीरेटस एंटीरियर एंड स्क्लेन। नेक्स्ट MCQs है कि
Patient sustained injury on RTA, then presented with gait problem. On examination, he was asked to stand on his right leg. While doing so, his left pelvis sink. तो राइट साइड का कौन सा मसल डैमेज है? राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस डैमेज है, जिसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। और ग्लूटियस मैक्सिमस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। पेशेंट केम टू ER, हमने कल भी किया था, हर पेपर में रिपीट होता है कि कौन सा इसमें क्या होता है? कोस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस डेवलप हो जाती है, इसकी वजह से एटिपिकल चेस्ट पेन होती है। ए पेशेंट वाज टेकिंग ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स रैपिड विड्रॉल, क्या करवाएगा? अगर आप रैपिडली स्टीरॉइड का इंटेक टेपर ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? सप्रेशन हो जाएगी एड्रिनल कॉर्टिकल सिस्टम की। A young boy present in orthodontic OPD with spacing of his teeth. He is unsure of his age. Which one of the following will help in estimation? आप उसकी एज को एस्टिमेट कैसे करेंगे? मल्टीपल रेडियोग्राफ्स उसके करवा लेंगे, ठीक है। पेरिसाइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर। फीमेल विथ हार्ट डिजीज, डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ हर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कांट बी मेड विथ स्ट्रक्चर इज डैमेज, तो कोडा टेंडनाई का डैमेज हो गया है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड की। और इंफीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है? थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। ये पेपर एंड हुआ, हमारी SK 1 to 18 आज ख़त्म हो गई है। और रिवाइज करें यहाँ तक कोई MCQs में कोई इशू किसी को? यहाँ तक सारे MCQs क्लियर हैं? अच्छा, कल आपने SK 19 हम स्टार्ट करेंगे, उसके 6 पेपर हैं ऑलमोस्ट, हम वो 3 डेज़ में इस तरह कर लेंगे, ठीक है। ताकि मैं चाह रही हूँ कि आपके ना नेक्स्ट SK 20 भी रिवाइज हो जाए और एंड पे आपको सेल्फ स्टडी के डेज पे मिल जाएँ, ठीक है। तो SK 19 वॉल्यूम 1 का कल आपने पेपर 1 करना है मेडिसिन का, और पेपर 2 मैं आपको करवाऊँगी। इस तरह SK 19 वॉल्यूम 1 हम 3 डेज़ में कर लेंगे, और जो SK 19 वॉल्यूम 2 है वो हम 5 डेज़ में कर लेंगे। उसके 10 मेडिसिन के पेपर हैं। और SK 20 के आप लोगों ने कितने बताए थे मेडिसिन के पेपर? SK 20 के आई थिंक उसके ज़्यादा थे। किसी को याद है SK 20 के कितने हैं मेडिसिन के पेपर? SK 19 वॉल्यूम 1 का आपने 10 है, चले वो भी फिर 5-5 करके कर लेंगे अगर आप डॉक्टर हमजा की क्लासेस ले रहे हैं ना, क्योंकि हमने तो अब सिर्फ रिवीजन करनी है, मेरे साथ आपने सिर्फ रिवीजन करनी है। फर्स्ट टाइम वो आप डॉक्टर हमजा की क्लास से कर चुके होंगे, ठीक है। वो मैं आपसे सुना करूँगी डेली। अब आपके जैसे हमारी SK वॉल्यूम 19-2 भी ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद बस मैं आप लोगों का सिर्फ वाइवा क्लासेस लूँगी, रिवीजन लूँगी, मतलब आप लोगों की प्रेपरेशन होगी, ठीक है। SK 19 वॉल्यूम 1 आपने उसका पेपर 1 मेडिसिन का कल करना है, और मैं आपसे वो सुनूंगी, और उसका जो पेपर 2 है वो मैं आपको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्लियर है ये? अच्छा चलो ये वाला पेपर रिवाइज कर लेते हैं तब तक, फिर AA के स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको ग्रुप के अंदर PDF कोई किसी के पास होगा तो शेयर कर लेंगे, वरना हार्ड कॉपी से भी मतलब पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपके ऊपर प्रेफर करता है, आप अगर PDF किसी के पास है तो शेयर कर देंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, अब आप लोगों ने आंसर करना है, हमने जो अभी पेपर रिवाइज किया है। A couple came back from Egypt, developed sore throat, yellow sputum with nausea, abdominal pain and diarrhea. Which drug you will given for the causative agent? Clithromycin, amoxicillin, acyclovir, oxyfloxacin. Clithromycin. Around 60% ventricle filling occurred in aortic systole, rapid ventricular filling, slow filling phase, isovolumetric relaxation. Nasal boils are usually caused by chlamydia, staph aureus, staph pneumoniae, H. influenza. A person is unable to lower his eye lesion in the pons medulla midbrain cerebellum. Private sector hospital cater 30%, 55, 60, more than 60. More than 60. A most common carcinoma in men worldwide is lung carcinoma, prostate carcinoma, liver, colon.
अच्छा, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपने रखना होता है प्रोस्टेट कार्सिनोमा, देन कोलोन कार्सिनोमा, देन लंग कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, IgE receptors are present on which blood cells? Eosinophil, mast cell, basophil, plasma cell, monocytes. Aldosterone act on which part of the kidney? PCT, thin loop of Henle, thick loop of Henle, CCT या distal tubules. Cytoplasmic anti-neutrophilic antibodies are seen in vasculitis, sarcoidosis, TB, arthritis, mesothelioma. Shortest pro-erythrocytic phase is P. falciparum, P. mulleri, P. ovale, P. vivax. Which one of the following feature of to identify sarcoma is pleomorphism, increased vascularity, dysplasia, local invasion, metastasis. CML की ट्रांसलोकेशन बताएं कौन सी होती है? Function of C3A and C5A is increased vascular permeability and anaphylaxis, chemotaxis, phagocytosis, allergic reactions. बॉक्सर हिट ऑन द फेस, अब उसका माउथ ओपन है, कौन सा मसल है जो कॉज करवा रहा है? लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल मैसेटर, टेम्पोरालिस. चले यहाँ तब अपने डबल ए का कौन सा टॉपिक है? मस्कुलोस्केलेटन और डर्मा के ही में आज. चलो ठीक है. हीम सिर्फ डबल ए से है या थ्योरी वाली बुक से भी है? क्योंकि फर्स्ट एड के ऊपर ना जो हीमाटोलॉजी है ना वो डबल ए से है, वो बहुत रफ सी लिखी हुई है, मतलब एज इट इज़ ये वाले पॉइंट्स MCQs में नहीं आते. डबल अगर हीमाटोलॉजी आपने थ्योरी रिवाइज करनी है ना तो आपने पैथो से करनी है, ठीक है. रफ़ी से करें, पैथोमा से करें और डबल ए से करें. फर्स्ट एड के ऊपर हीमाटोलॉजी अच्छी नहीं दी हुई. अच्छा, इसके पॉइंट्स निकाल लेने थे. 489. अच्छा, ये बताएं कि अल्फा थैलेसीमिया के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है? 16, 11, 4 या 6? 16. और बीटा थैलेसीमिया के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है? बीटा के अंदर 11. और हाइड्रोप्सियोटैलस किस अल्फा थैलेसीमिया के टाइप के अंदर आता है? हाइड्रोप्सियोटैलस हीमोग्लोबिन बार्ट वाले में या टाइप 4 वाले के अंदर, ठीक है. तो अब आप बताएं कि अगर सीरम आयरन भी रेज्ड है, फेरेटिन भी रेज्ड है, TIBC नॉर्मल है या डिक्रीज है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग है एंड रिंग शेप सिड्रोब्लास्ट हैं, इट्स सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया. क्रू कट स्कल के अंदर एक्सरे के अंदर आ रही हैं, टारगेट सेल्स आ रहे हैं, बीटा चेन एब्सेंट है. थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया मेजर. अच्छा, इसमें HbF इंक्रीज होगी, HbA इंक्रीज होगी, HbA2 इंक्रीज होगी. कौन सी चीज़ बीटा थैलेसीमिया मेजर में इंक्रीज होगी? HbF और HbA2 दोनों. अच्छा, आप बताएं कि फैटी मैरो डायग्नोस्टिक पॉइंट किसका है और उसमें EPO का लेवल भी रेज्ड हो जाता है, पैनसाइटोपिनिया हो जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया. डिक्रीज NADPH डिक्रीज किसके अंदर हो जाता है? एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है और NADPH डिक्रीज हो जाता है G6PD के अंदर. पार्वोवायरस B12 जो पार्वोवायरस का इन्फेक्शन है वो सिकल सेल एनीमिया की किस टाइप के अंदर आता है? सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, हीमोलिटिक क्राइसिस, एप्लास्टिक क्राइसिस, ठीक है. डीप जॉन्डिस है, HB कम है, अब सिकल सेल एनीमिया की कौन सी टाइप है? हीमोलिटिक. और
पेनफुल वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस आ गए हैं और एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है। ये किस में आते हैं सिम्टम्स? ऑटोस्प्लीनेक्टमी है, एब्डोमिनल पेन है, एस नमूनी का इन्फेक्शन है, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। हीमोफीलिया सी बताएं इसकी कौन सी है? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है? हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल रिसेसिव है, हीमोफीलिया ए एंड बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएं कि प्लेटलेट डिसऑर्डर के अंदर क्या चीज़ रेज्ड हो जाती है? एपीटीटी, बीटी या पीटी? प्लेटलेट डिसऑर्डर में बीटी। अच्छा अब मुझे टीटीपी का ट्राइएड बताएं। टीटीपी का ट्राइएड याद है किसी को? टीटीपी का ट्राइएड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, महा आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया, किडनी का आ जाएगा, क्रेटिनिन रेज्ड होगी, एक्यूट किडनी इंजरी होगी। ये पहले भी आई थिंक किसी ने ग्रुप में एमसीक्यूज पूछा हुआ था। तो जब भी क्रेटिनिन रेज्ड होगी तो आपका आंसर टीटीपी होगा। और फीवर के साथ न्यूरोलॉजिकल सीएनएस सिम्टम भी आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है तो इस ट्राइएड के साथ ब्लडी डायरिया आएगा। ठीक है, बस ये है। अच्छा, हॉजकिन लिम्फोमा की बात करते हैं। इसमें कौन से इसके मार्कर कौन से हैं? CD10, CD19, 20, CD15 एंड 30। ठीक है, बेस्ट प्रोग्नोसिस किस टाइप का होता है? लिम्फोसाइट रिच, डिप्लीटेड प्रीडोमिनेंस, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस या मिक्स्ड सेलुलैरिटी? बेस्ट प्रोग्नोसिस रिच वाले का होता है, लिम्फोसाइट रिच। ठीक है, जो नोड्यूलर होती है ना वो मोस्ट कॉमन होता है। नोड्यूलर स्क्लेरोसिस इज मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट प्रोग्नोसिस इज लिम्फोसाइट रिच। और पुअर प्रोग्नोसिस किसका होता है? डिप्लीटेड वाले का। ठीक है, अच्छा अब मेंटल सेल लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन बताएं। मेंटल सेल लिम्फोमा और ठीक है, मल्टीपल माइलोमा के अंदर आप एंटीबॉडीज के सीक्वेंस बताएं। सबसे ज़्यादा कौन कौन सी रेज्ड होती है सीक्वेंस वाइज? गैम्डा सबसे पहले जी होगी, वो 60, आपको इसकी परसेंटेज भी याद होनी चाहिए। ठीक है, IgG 60%, IgA 20 to 25%, IgM 15%। ठीक है, ALL क्या मार्कर कौन सा है? CD10, 15, 19, 20, 30। ALL ल्यूकीमियाज की बात कर रहे हैं। 10 अयर रोड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो DIC के साथ प्रेजेंट करता है? AML। वेरी गुड। Prominent feature is massive splenomegaly. Characteristic feature is teardrop cells. डायग्नोसिस कौन सा होगा? कौन सा ऐसा? माइलोफाइब्रोसिस। वेरी गुड। आयरन एक्सेसिव स्टोरेज किस फॉर्म में होती है? ट्रांसफेरिन, हीमोसिड्रिन, फेरेटिन? हीमोसिड्रिन। और हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करती है? ट्रांसफेरिन के साथ, हीमोसिड्रिन के साथ या हेप्टोग्लोबिन के साथ? हेप्टोग्लोबिन के साथ। फैक्टर 5 का अगर म्यूटेशन हो जाए तो वो क्या करवाती है? लीड्स टू थ्रोम्बोसिस या ब्लीडिंग? अच्छा, फैक्टर 5 की जब म्यूटेशन की बात की जाए तो वो थ्रोम्बोसिस करवाते हैं। अगर फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी हो जाए देन ब्लीडिंग आपने चूज़ करना है। ठीक है, और फैक्टर 12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? ब्लीडिंग या थ्रोम्बोसिस? इट्स थ्रोम्बोसिस। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोआगुलोपैथी कौन सी होती है? इन मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोआगुलोपैथी वॉन विलीब्रेंड डिजीज। नेचुरल थ्रोम्बोलिटिक कौन सी होती है? हेपरिन या प्लाज्मिनोजिन? प्लाज्मिनोजिन। और हेपरिन क्या है? ये नेचुरल एंटीकोआगुलेंट और एंटी थ्रोम्बोटिक है। इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट कौन करता है?
कौन सा फैक्टर है जो इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करता है? फैक्टर 12, हैकमैन फैक्टर। आईटीपी के अंदर क्या चीज़ रेज्ड होती है? बीटी, पीटी या एपीटीटी? बीटी। हेपरिन का एंटीडोट क्या होता है? प्रोटामिन सल्फेट। और इसका साइड इफेक्ट बताएं, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या आता है इसका? ये भी एग्जाम में आया हुआ था, हाइपोटेंशन। वेरी गुड। चलिए बस आज यही था इसका डबल ए के एमसीक्यूज, सॉरी पल्स पॉइंट्स। और अच्छा, अगर आपने फार्मा फर्स्ट एड से, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट ओपन करके बताती हूँ। अच्छा, जो इसकी फार्मा है ना फर्स्ट पेज वाली हेपरिन वाली, उसमें आपको बताना चाहिए कि इसका एंटीडोट क्या है। एंटीडोट ये है इसका प्रोटामिन सल्फेट, और इसके यूजेस भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी ना मैंने एक छोटा सा ना टेबल मैंने ऐसे किया था कि फार्मा के ना सारे जो पॉइंट्स हैं आगे, वो शॉर्ट लिस्ट करके ना अपने एक छोटा सा एक पेज के ऊपर लिख लिए थे। तो मैं आपको ना वो ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, आपने मेन वो याद रखना है कि ये क्या क्या करवाती है, ठीक है। वो वॉरफेरिन भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है कि ये क्या क्या करवाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हेपरिन और वॉरफेरिन के एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट कोआगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर्स है ना, इसकी आपको मैकेनिज्म और एक्शन पता होना चाहिए। एक्शन तो इसका एक ही है कि ब्लीडिंग करवाती है, मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि किसको इनहिबिट करती हैं, थ्रोम्बिन या फैक्टर 10 को इनहिबिट करती हैं। एंटी कोआगुलेशन रिवर्सल, ये आप एक दफ़ा ना कर लीजिएगा, हेपरिन वाला सारा, ठीक है। एंटी प्लेटलेट्स भी एक दफ़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो करने हैं, एस्प्रिन वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बोलिटिक्स भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। अब यहाँ तक तो आपने कर लिया। पेज नंबर 443 आपने नहीं करना, और जो पेज 444 है, 45 है और 46 है, इसमें ना आपने मेन करना है। जैसे ब्लियोमाइसिन आप हाईलाइट कर लें कि ये क्या करवाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाता है। एंथ्रासाइक्लिन क्या करवाता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवाता है, ठीक है। और नेक्स्ट एंटी मेटाबोलाइट्स वाले टेबल में ना आपने मेन इसके क्लिनिकल यूजेस एक दफ़ा रीड सारे करने हैं। और जैसे 5 फ्लोरो यूरासिल है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या आता है, हैंड एंड फुट सिंड्रोम कॉज करवाता है। हाइड्रोक्सी यूरिया से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो जाता है। मिथोट्रिक्सेट टेराटोजेनिक है और नेफ्रोटॉक्सिक है। अल्काइलेटिंग एजेंट जो है ना, इसके भी आपने एक दफ़ा क्लिनिकल यूजेस को रीड कर लेना है। और जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड है, ये क्या करवाता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवाता है, ठीक है। प्रोकार्बाजिन क्या करवाता है, डाइसल्फरम लाइक रिएक्शन कॉज करवाता है, ठीक है। प्लैटिनम कंपाउंड क्या करवाता है, फेनकनी सिंड्रोम कॉज करवाते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होता है। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर जो है, जो सारे ये जो विनका अल्कोलाइड्स आपने इसके एडवर्स इफेक्ट करने हैं कि विन क्रिस्टिन क्या करवाता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, और विन ब्लिस्टिन क्या होता है, माइलो सप्रेशन कॉज करवाता है। ये एमसीक्यूज अगर आपको याद हो ना, तो ये सारे हमने थर्ड ईयर फार्मा में भी किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाए कि ये टोपोआइसोमेरेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टेमोक्सिफिन ये आपने करना है सारा, ये इंपॉर्टेंट आता है कि इसका मैकेनिज्म भी आता है, क्लिनिकल यूज़ और एडवर्स इफेक्ट भी इसका आता है। एंटी कैंसर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसके ये जो है ना हाईलाइटेड सा पॉइंट लिखा हुआ है 5 पॉइंट पे, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है कि ये क्या करवाता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवाता है, और इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है, ब्रेस्ट कैंसर में और गैस्ट्रिक कैंसर में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जो है ना, वो एंटी कैंसर स्मॉल इनहिबिटर्स, ये आप छोड़ दें टेबल, ठीक है। नीचे आ जाए कीमोटॉक्सिसिटी, ठीक है, ये वाले कर लें, ठीक है। कि मंसा क्या करवाता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवाते हैं फ्रॉम साइक्लोफॉस्फामाइड। ऑनडेनसेटोन, और जो लास्ट 5 ड्रग्स हैं इनका सिर्फ मैकेनिज्म करना है। ऑनडेनसेटोन क्या करवाता है, 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, ठीक है। मेटोक्लोप्रामाइड D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और फिलग्रिस्टिन क्या करवाते हैं, रिकॉम्बिनेंट CSF, और ये न्यूट्रोपिनिया के पेशेंट्स में देते हैं। और ई पोइटिन अल्फा हम रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। आगे जो है ना की पॉइंट है 448 पे, ये सारे अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं।
कि सिस्प्लास्टिन क्या करवाएगा, ऑटोटॉक्सिसिटी करवाएगा, विनक्रिस्टिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ब्लियोमाइसिन पल्मोनरी फाइब्रोसिस, डॉक्सोरुबिसिन कार्डियोटॉक्सिसिटी और सिस्प्लाटिन नेफ्रोटॉक्सिसिटी और साइक्लोफॉस्फेमाइड हेमरेजिक सिस्टाइटिस। ठीक है, तो ये आपने मेन जो है वो आपने याद रखना है। ठीक है, और मैं आपको इसका टेबल भी सेंड कर देती हूँ। बाकी एक दफ़ा ना आप पैथोमा से कर लीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट एड से ना हीम वाले एमसीक्यूज थोड़े से ट्रिकी मतलब बना के देते हैं, तो फर्स्ट एड के अंदर ना बहुत अजीब से लिखा हुआ है, इस तरह नहीं आता पेपर में आता है जो पैथोमा लिखा हुआ है। ठीक है, या तो आप उसका कोई पीडीएफ से कर लें, या अगर हार्ड बुक है किसी के पास तो वहाँ से कर लें। ठीक है, चलिए अपनी रिविजन्स कंटिन्यू रखें, और कल आपने एस के पेपर 19 वॉल्यूम 1 का पेपर 1 करना है। ठीक है, और सेकंड वाला हम क्लास में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एंटीसाइकोटिक भी फर्स्ट एड से सीएनएस वाली आप पूछ रहे हैं? अच्छा, सीएनएस भी जब हम करेंगे ना तो तब मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैंने फर्स्ट एड से सीएनएस नहीं किया हुआ, आई थिंक ओपन कर लेते। साइकेट्री नहीं मैंने की थी। एंटीसाइकोटिक्स वैसे इम्पोर्टेंट हैं। आप एंटीसाइकोटिक्स सिर्फ एंटीसाइकोटिक्स वाला कर लीजिएगा, पेज नंबर 591 पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसके एक दफ़ा कर लीजिएगा, मतलब मैंने किसी और एग्ज़ाम के लिए ये एक दफ़ा रीड किए हुए हैं, लेकिन एफसीपीएस में आई थिंक इतना टाइम नहीं था कि साइकेट्री वाला भी रिवाइज करते पोर्शन। ठीक है, तो आप जो एंटीसाइकोटिक वाला है ना आपने एक दफ़ा कर लेना है, चैप्टर नहीं करना, सिर्फ ये वाली टेबल्स कर लेना है फार्मा इसकी। ठीक है, एंटीसाइकोटिक वाली। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? चलो ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।